امریکہ نے سعودی عرب کو F-15 طیاروں کے آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون نے سعودی عرب کو F-15 لڑاکا طیاروں کے پرزے فروخت کرنے کی منظوری دی، جس کی کل مالیت $3 ارب ہے۔ پینٹاگون کے مطابق معاہدے کے تحت سعودی عرب میں محدود تعداد میں امریکی شہری کانٹریکٹرز یا فوجی عملہ بھی طویل مدتی بنیادوں پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ 3 روز قبل امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائلز فروخت کرنے کی بھی منظوری دی تھی۔ سانحہ گل پلازہ کو 19 روز گزر گئے، تحقیقات تاحال جاری۔ آگ دکان نمبر 193 میں بچے کے ماچس سے کھیلتے ہوئے لگی۔ پہلی اور دوسری منزل کی CCTV فوٹیج نہ مل سکی۔ سانحہ گل پلازہ میں 79 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی۔ اب تک 68 جاں بحق افراد کی میتیں اور باقیات پرسا کے حوالے کی جا چکی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اگلی ملاقات کہاں ہوگی اس کا انہیں ابھی علم نہیں۔ ہم ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ بھی کر چکے ہیں، نہیں لگتا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ چاہے گا۔ ایران کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان شرکت کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ نے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جمعے کو استنبول میں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی ملاقات کریں گے۔ مصر، عمان، قطر، سعودی عرب، UAE بھی استنبول مدعو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر خارجہ کو مذاکرات کی ہدایت، کہا منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر بات کریں، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات استنبول کی بجائے عمان میں کیے جائیں، ایران کا امریکہ سے مطالبہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ سے 2 طرفہ باہمی مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ اعلان ابھی سامنے نہیں آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترکیہ، عمان، قطر اور کویت کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی پیش رفت اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی فوج کا بحری عرب میں ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی ڈرون ابراہیم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق F-35 لڑاکا طیارے نے ڈرون کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ بلوچستان میں 3 روزہ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ قوم کے 22 بہادر سپوتوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں فوج، FC، پولیس اور PMSA کے جوان شامل۔ بلوچ شہریوں سمیت 36 عام لوگ بھی دہشت گردوں کی بربریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن اب بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم کی وفد کے ہمراہ ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی شرکت۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بھی شریک ہوئے۔ قازقستان کے صدر کو پاکستانی فضائی حدود میں JF-17 طیاروں کی سلامی۔ JF-17 طیاروں کے 6 رکنی اسکواڈرن نے مہمان صدر کا استقبال کیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور قوم کی جانب سے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ مہمان صدر کو گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ قازق صدر آج پاکستانی قیادت سے ملیں گے، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی ولی عہد نے ترک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران امریکہ متنازع، یمن اور شام میں حالیہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ترکیہ، امریکہ، ایران اور دیگر علاقائی حکام کی میزبانی کر رہا ہے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no.
I think ayes have it, consequently resolution is adopted. रियासत आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद पेश की। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस की तजवीज़। ऐवान में नेशनल एक्शन प्लान पर तफसीली बहस कराई जाए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है, नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक बहस रख लेते हैं। मुल्क दुश्मनों के साथ वही करेंगे जो किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, भारत बलूचिस्तान में तखरीब कारी कर रहा है। भारत की मुदाखलत के शवाहिद कलभूषण की सूरत में मौजूद है। चंद लोग बलोचों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचों को तखरीबकारी पर उकसाने वालों को कुचल देंगे। नालायकी के दौर से गुजरे हैं पिछले 7-8 साल, जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं। हमारी जो यूथ है जो ने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम उनको सजा रहे हैं। आपके जेल के बाहर जाके बैठने पे मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। सियासी इख्तलाफात दुश्मनी में बदले गए। लोगों को कहा गया, जलाओ गहराव करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, फसाद और इंतशार PTI का वतीरा है। अवाम फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके। लोगों ने PTI की कॉल पर कान नहीं धरा। आप जेल के बाहर बैठे, कोई एतराज नहीं। आपका असल काम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत है। जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा असल हुकूमत के बावजूद पसमानदा क्यों है? हमारा सूबा मुसलसल 15 साल से पीछे जा रहा है। तालिबा का सुहेल आफरीदी से मुकालमा। वज़ीर आला ने जवाब दिया, आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। तालिबा ने कहा कि सूबे में तरक्की सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के घरों में हुई। करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। बानी की आंख का प्रोसीजर जेल अस्पताल में मुमकिन था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी PTI ने कहा कि उन्हें शाम को लेकर जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने तफसीलात से आगाह कर दिया। आंख की जो बीमारी थी उसमें इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन नहीं होता। उन्हें कोई मजीद पेचीदगी नहीं। पाकिस्तान में बदउनवानी के पर कुतरे जाने लगे। शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स बेहतर होने लगा। 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक। FPCCI ने शफाफियत पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 24% शहरियों की अकरबा परवरी और मैरिट की खिलाफ वर्जी का शिकवा। सिर्फ 5% शहरियों का सरकारी मुलाजमीन पर नाजायज आमदन का इल्जाम। पंजाब खूबसूरत सकाफत का हामिल सूबा है। नौजवानों को अपनी तारीख और कल्चर से रोशनास करवाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का महफूज बसंत के लिए कायम कंट्रोल रूम से खिताब। बसंत के त्यौहार के लिए उठाए गए इकदामात बताए। कहा, बसंत मनाएं मगर कानून को मलहूज़े खातिर रखें। अगले साल पंजाब भर में बसंत की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने गुड्डी लाहौर दी उड्डी पाई लाहौरिया ने लुड्डी नगमा रिलीज कर दिया। बसंत का जश्न बोकाटा के शौकीन शहरियों के बेकरारी बढ़ गई। मोची दरवाजा में खरीदारी में तेजी। 2 पीस पिन्ने की कीमत 12,000 डिमांड। पौना तावा 150 से 200 में फरोख्त होने लगा। एक तावा 400 से 500, 1.5 तावा गुड्डा 800 रुपए तक जा पहुंचा। शहरी परेशान। DC ऑफिस में पतंगों और डोर का नर्ख सरकारी सतह पर तय करने की दरखास्त। लाहौर की फजाओं में बसंत की खुशबू फैल गई। रंगों और रवायतों का अमीन ये त्यौहार बागों के शहर की पहचान। शहर की शाहराहों गली कूचों को खुसूसी तौर पर सजा दिया गया। लिबर्टी चौक और केनाल रोड की सजावट दीदनी।
ड्रोन कैमरों से बसंत वाली छतों की चेकिंग, मखसूस तादाद से ज्यादा इकट्ठ के लिए एनओसी लाजमी करार। कमिश्नर मरियम खान के मुताबिक हर मेजबान छत का रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। क्विक रिस्पांस टीमें हर मेजबान जगह और रूफ टॉप का एनओसी चेक करेंगी। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खतरनाक छतों वाली इमारतों और घरों को नोटिस। जेल या सेफ्टी रॉड, फैसला आपका। सेफ्टी रॉड ना लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस एक्शन में आ गई। दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के डर से शहरियों की दुकानों पर दौड़े। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगवाने के काम में गैर मामूली तेजी। बसंत पर लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर का मौसम पतंगबाजी के लिए परफेक्ट करार। बसंत के तीनों दिन आइडियल मौसम की पेशगोई। बसंत पर मौसम में बहार अपने जोबन पर होगा। आसमान पर धूप और बादलों का राज रहेगा। तजल्लियात इलाही की बरसात, फैसलों की रात। शब बारात पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। नवाफिल की अदायगी के साथ कुरान ख्वानी। दाता दरबार में शब बारात की रूह परवर महफिल। उलमा कराम ने इस रात को गुनाहों से तौबा की रात करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम सरतान पर पैगाम। कहा, हुकूमत सरतान की रोकथाम के लिए जामे कौमी हिकमत अमली पर तैयारी पर सरगर्म अमल है। सरतान के खिलाफ जद्दोजहद सिर्फ एक तिबी चैलेंज ही नहीं, एक जंग, एक मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। मोदी टेंशन में हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका से तिजारती डील पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जो डील 4 माह से नहीं हुई थी, मोदी ने इस पर दस्तखत कर दिए। मोदी ने भारतीय किसान और भारत को बीज दिया है। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप के AI वीडियो शेयर कर दिए। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला, दारुल हुकूमत कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव और मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद हमले में जख्मी हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका की सालसी में रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होने हैं। मिशन T20 वर्ल्ड कप, शाहीनों ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान का आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच आज खेला जाएगा। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा।